This video is a part of lecture series on nucleic acid because the many students have requested me to add some videos on important topics. Instead of live streaming, I preferred to record the video so that in lesser time you can complete the maximum information. And I will add several videos in this particular topic. And I have kept the duration of video short. I have not only included the basic concept, but also incorporated many questions so that you can understand the applications. And the purpose of this video is to show the aspiring student how to unfold the information. And let us start. And one thing, I recorded this video in Hindi. For those students who are not able to understand the Hindi properly, later on I will record the same lecture in the English also. This is a very important topic and we will learn a number of parameters related to nucleic acid. Under this chapter, we will learn about the classification of nucleic acids, nucleotide structure and their function, the features of polynucleotide, the torsion angle of a nucleotide present in polynucleotide, RNA hydrolysis in alkaline solution, what are the different types of the polynucleotide, how we can calculate the net charge and the molecular mass of a polynucleotide. We will also learn about the structure of polynucleotide, Chargaff's rule and their applications, the forces stabilizing double-stranded helical conformations. We will learn about the conformations of double-stranded DNA, differences between the triplex form of DNA and quadruplex form of DNA. We will understand the process of DNA denaturation, and finally I will discuss about DNA supercoiling. न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन है, जैसे इट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेलुलर एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पर मैं सारे प्रोकैरियोट्स को कंसिडर कर रहा हूँ एंड सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, वो सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. और किसी भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आप न्यूक्लिक एसिड ही शो करते हो. अपार्ट फ्रॉम द सेलुलर ऑर्गेनिज, अगर आप नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज कंसिडर करते हो तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज इंक्लूड्स द वायरसेज एंड विरवाइट्स. तो वायरसेज एंड विरवाइट्स के केस में भी न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है. तो न्यूक्लिक एसिड एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेलुलर एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड न्यूक्लिक एसिड इज बेसिकली द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इसीलिए आप न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के तौर पर भी डिस्क्राइब करते हो. और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इट मीन्स न्यूक्लिक एसिड को आप मैक्रोमोलिक्यूल्स के तौर पर कंसिडर करते हो, और ये एक इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरीज को बिलोंग करता है, क्योंकि आप दो ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिसे इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स के तौर पर कंसिडर करते हो. उनमें से एक प्रोटीन है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड है. और अगर ये इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स के तौर पर रोल प्ले कर रहा है तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसे ट्रांसमिट करता है और उसे ट्रांसलेट करता है. तो न्यूक्लिक एसिड acts as a informational macromolecules and responsible for the storage, transmissions and translations of the genetic informations. और ये कुछ कॉमन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन है. बट न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बेटर वे में समझने के लिए हमें सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को क्लासिफाई करने की आवश्यकता है. और जब आप न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करते हो तो न्यूक्लिक एसिड के तौर पर आप टू डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी करते हो. वन इज डीएनए एंड सेकेंड इज द आरएनए. So now see how we can classify the nucleic acid under different categories. In nature, you will get two different forms of nucleic acid. The one form of the nucleic acid is termed as DNA molecule, and second form of nucleic acid is termed as RNA molecule. In any organism, if you will consider DNA as a nucleic acid, so DNA always acts as a genetic material. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर प्रेजेंट है तो ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पर ही काम करेगा. और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आप शो करते हो इन केस ऑफ द डीएनए वायरस. डीएनए प्रेजेंट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन द केस ऑफ द ऑल द सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे उन सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नेचर प्रोकैरियोटिक हो या सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नेचर यूकैरियोटिक हो. आप डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर शो करते हो. आरएनए टू डिफरेंट नेचर शो कर सकते हैं.
आरएनए का नेचर जेनेटिक भी हो सकता है और नॉन जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट होता है तो ये कंडीशंस कॉमन कंडीशंस के तौर पर हम लोग नहीं शो करते। इट इज ए अनकॉमन कंडीशन। आप जेनेटिक आरएनए का प्रेजेंस विरोइड्स के केस में, इन केस ऑफ द आरएनए वायरसेज, आप इन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के केस में आप शो करते हो। अदरवाइज आप ऑर्गेनिजम्स के केस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आप डीएनए शो करते हो। जितने भी प्रोकैरियोट्स, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, सबों में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए ही प्रेजेंट होता है। नॉन जेनेटिक आरएनए के सेवरल डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप उसे ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, कोडिंग आरएनए एंड नॉन कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए को आप डिस्क्राइब करते हो एज ए मैसेंजर आरएनए के तौर पर, और मैसेंजर आरएनए को छोड़कर अगर आप किसी भी नॉन जेनेटिक आरएनए को अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो उसे आप नॉन कोडिंग आरएनए की कैटेगरीज में आप प्लेस करते हो। अब नॉन कोडिंग आरएनए को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो आप ब्रॉडली टू कैटेगरीज ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए को आप शो करते हो। वन इज द शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए एंड सेकेंड इज द लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 200 से ज्यादा है तो आप उस कंडीशन में उसे लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए की कैटेगरीज में प्लेस करते हो। शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए के एग्जांपल के तौर पर आप एसआई आरएनए को कंसीडर कर सकते हो, माइक्रो आरएनए कंसीडर कर सकते हो, ट्रांसफर आरएनए कंसीडर कर सकते हो, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नॉन कोडिंग आरएनए है जिसे आप शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए की कैटेगरीज में प्लेस करते हो। लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के केस में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आप मोर देन 200 आप शो करते हो, और लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के तौर पर आप राइबोसोमल आरएनए कंसीडर कर सकते हो, जिस्ट कंसीडर कर सकते हो। तो न्यूक्लिक एसिड को आप ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए हमेशा जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। आरएनए का नेचर जेनेटिक भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक भी हो सकता है। अगर नॉन जेनेटिक है तो उसका नेचर कोडिंग भी हो सकता है, नॉन कोडिंग भी हो सकता है। अगर नॉन कोडिंग है तो आप साइज के आधार पर उन्हें फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो अंडर द शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए एंड लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, इन दो कैटेगरीज में। जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के केस में आप 3 डिफरेंट कंपोनेंट शो करते हो। उनमें से एक कंपोनेंट के तौर पर आप शुगर को मेंशन करते हो, सेकेंड कंपोनेंट के तौर पर नाइट्रोजनस बेस आप शो करते हो, थर्ड कंपोनेंट के तौर पर आप फॉस्फोरिक एसिड शो करते हो। तो इन केस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड you will get the three component. One is sugar molecule, second is the nitrogenous base, and third is the phosphoric acid. मैं सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट शुगर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शुगर मॉलिक्यूल के केस में आप सर्टेन फीचर्स को आप मेंशन करते हो, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो फीचर्स कौन कौन से हैं। तो यू विल गेट द पेंटोज शुगर इन केस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, और जिस पेंटोज शुगर को आप न्यूक्लियोटाइड के केस में शो करते हो, उस पेंटोज शुगर के फॉर्मेशन में 5 कार्बन पार्टिसिपेट करता है, जिसे आप 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम कार्बन के तौर पर आप मेंशन करते हो। क्यों यहाँ आप 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम मेंशन करते हो, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिकॉज इट इज ए पेंटोज शुगर, तो ये 5 कार्बन का बना होता है। अब इस पेंटोज शुगर के 2 डिफरेंट फॉर्म्स को आप न्यूक्लियोटाइड के केस में शो करते हो। पेंटोज शुगर का एक फॉर्म जिसे आप राइबोज शुगर के तौर पर आप डिस्क्राइब करते हो, और एक सेकेंड फॉर्म जिसे आप डीऑक्सी राइबोज शुगर के तौर पर शो करते हो। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर के केस में डिफरेंसेस आप 2 प्राइम कार्बन के पोजीशन पर शो करते हो। एट 2 प्राइम पोजीशन अगर यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप कंसीडर कर रहे हो तो इसे आप डिस्क्राइब करते हो राइबोज शुगर। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्लेस पर अगर सिंपली हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता तो आप इसे डिस्क्राइब करते एज ए डीऑक्सी राइबोज शुगर के तौर पर।
जिस शुगर मॉलिक्यूल को आप न्यूक्लियोटाइड के केस में शो करते हो, उस शुगर मॉलिक्यूल का नेचर मोनोसेक्राइड होता है, वो पेंटोज शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनके टू डिफरेंट फॉर्म्स आप कंसीडर करते हो, one is the ribose sugar and second is the deoxyribose sugar, based on the presence and absence of hydroxyl group at 2' position. See, ribose and deoxyribose sugar जिसे आप न्यूक्लियोटाइड के केस में शो कर रहे हो, वो एक कायरल मॉलिक्यूल है, और कायरल मॉलिक्यूल इसलिए आप कंसीडर करते हो क्योंकि इनके पास एसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है। और अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन, तो आप उस कंडीशन में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करते हो। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। मैं अगर डीएल सिस्टम को अगर फॉलो करूं, डीएल सिस्टम के आधार पर जब आप यहां एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करते हो, तो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का नेचर होता है कैपिटल डी। तो यहां आप डी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हो इन केस ऑफ द राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्म डी एल से कैसे जो है डिफरेंसेस शो करता है। नॉसी, देखो, जब आप डीएल सिस्टम के आधार पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करते हो, तो आप एक रेफरेंस मॉलिक्यूल के तौर पर ग्लिसरॉल्डिहाइड को कंसीडर करते हो। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक मोनोसेकेराइड है और ये 3 कार्बन से बना है, इसलिए आप इसे ट्रायोज के तौर पर कंसीडर करते हो। और इस 3 कार्बन के मोनोसेकेराइड में अगर आप कार्बन की नंबरिंग को अगर आप परफॉर्म करते हो, तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। और ये सेकेंड कार्बन एक एसिमेट्रिकल कार्बन के तौर पर यहाँ प्रेजेंट है। तो आप ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल को एक कायरल मॉलिक्यूल के तौर पर कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ एक एसिमेट्रिकल कार्बन का प्रेजेंस आप शो कर रहे हो। और इसी एसिमेट्रिकल कार्बन के प्रेजेंट होने के कारण ये मॉलिक्यूल एक नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज को डेवलप करता है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल के मिरर इमेज को अगर आप कंसीडर करो, तो ये मिरर इमेज एक नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज के तौर पर डेवलप होता है। तो और ये जो दो नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, इन्हें आप डिस्क्राइब करते हो एज ए इनेंशियोमर के तौर पर। तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल ये इनेंशियोमरिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे का नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप डीएल सिस्टम के आधार पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करते हो, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को आप शो करते हो, एक एल ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर OH का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के तौर पर। अगर OH का पोजीशन राइट हैंड साइड है, तो इसे आप कंसीडर करते हो एज ए डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के तौर पर। तो इट मीन्स कि आप ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में डीएल सिस्टम के आधार पर दो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हो। एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को आप एल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर और दूसरे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को आप डी कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर आप मेंशन करते हो। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर को कंसीडर करता हूँ, जो कि न्यूक्लियोटाइड के केस में प्रेजेंट होता है, आप वहां डी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करते हो। बट जब आप ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल से आप राइबोज या डीऑक्सीराइबोज को कंपेयर करते हो, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में आप 3 कार्बन को शो करते हो, बट राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर के केस में आप 5 कार्बन को शो करते हो। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। और ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में आप एक सिंगल एसिमेट्रिकल कार्बन को शो करते हो, बट यहाँ एसिमेट्रिकल कार्बन के तौर पर आप सेकेंड कार्बन को भी कंसीडर करते हो, थर्ड कार्बन को भी कंसीडर करते हो और फोर्थ कार्बन को भी कंसीडर करते हो। तो फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें किस कार्बन के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ एक कन्वेंशन हमें फॉलो करना होता है कि जो लास्ट कायरल कार्बन है, उनके रिस्पेक्ट में हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करना होता है। तो यहाँ लास्ट कायरल कार्बन के तौर पर आप फोर्थ कार्बन को कंसीडर, तो यहाँ फोर्थ कार्बन के आधार पर जब आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करते हो, तो क्योंकि यहाँ OH राइट हैंड साइड है, तो आप इसे डी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर शो करोगे। अगर ये OH राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड होता, तो आप इसे एल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर जो है कंसीडर करते।
सी, जब आप न्यूक्लियोटाइड के केस में राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर को आप मेंशन करते हो तो उसका नेचर साइक्लिक होता है। अब क्वेश्चन है कि साइक्लिक नेचर का मीनिंग क्या है, और फिर साइक्लिक फॉर्म फ्यूरानोज फॉर्म में प्रेजेंट होगा या पायरानोज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नाउ सी दिस कंडीशन। देखो, जब आप किसी मोनोसेक्राइड को कंसीडर करते हो तो मोनोसेक्राइड के केस में आप 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन आप नॉर्मली शो करते हो। तो मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन का होता है। अगर आप मोनोसेक्राइड को एक्वस कंडीशंस में अगर आप कंसीडर करो तो 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड हमेशा लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये कभी भी साइक्लिक फॉर्म ऑफ नहीं करते। 4 कार्बन का मोनोसेक्राइड हमेशा लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यहाँ साइक्लिक फॉर्म डेवलप नहीं होता। बट 5 कार्बन और 6 कार्बन के ये जो दो मोनोसेक्राइड के फॉर्म है, इनका आप लीनियर फॉर्म में भी प्रेजेंस शो करते हो और साइक्लिक फॉर्म में भी आप प्रेजेंस शो करते हो। इट मीन्स इनका साइक्लिक फॉर्म भी हो सकता है और लीनियर फॉर्म भी हो सकता है। अगेन, जब आप 7 कार्बन के मोनोसेक्राइड को कंसीडर करते हो तो इनका सिर्फ आप लीनियर फॉर्म को शो करते हो। तो अगर मैं पेंटोज शुगर कंसीडर कर रहा हूँ तो हमें पेंटोज शुगर के केस में इस बात को पॉइंट आउट करने की आवश्यकता होगी कि यहाँ एक्वस कंडीशन में आपको साइक्लिक फॉर्म का प्रेजेंस मिल रहा है या लीनियर फॉर्म का प्रेजेंस मिल रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर के केस में देख रहे हो कि ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बिकॉज दिस इज द साइक्लिक फॉर्म। अब जब साइक्लिक फॉर्म आप शो करते हो तो फिर आपको साइक्लिक फॉर्म के शेप को डिस्क्राइब करना होता है कि उनका शेप पायरान से सिमिलरिटी शो कर रहा है या फ्यूरान से सिमिलरिटी शो कर रहा है। अगर आप इस पेंटोज शुगर के शेप को अगर आप पायरान और फ्यूरान से कंपेयर करो तो इनका शेप जो है फ्यूरान से जो है सिमिलरिटी शो करता है। इसीलिए आप यहाँ पेंटोज शुगर को साइक्लिक फॉर्म में शो करते हो और साइक्लिक फॉर्म को आप डिस्क्राइब करते हो एज ए फ्यूरानोज फॉर्म के तौर पर, क्योंकि इनकी सिमिलरिटी जो है आप फ्यूरान से जो है शो करते हो, इसलिए आप इनको डिस्क्राइब करते हो एज ए फ्यूरानोज फॉर्म के तौर पर। देखो, जब मोनोसेक्राइड साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो साइक्लिक फॉर्म फ्यूरानोज फॉर्म हो, पायरानोज फॉर्म हो, ये मैटर नहीं करता। अगर वो साइक्लिक फॉर्म है तो फिर आप वहां एनोमरिक कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हो। अब जब आप एनोमरिक कंडीशन को डिस्क्राइब करते हो तो आप 2 डिफरेंट एनोमर्स को आप मेंशन करते हो। वन इज द अल्फा एनोमरिक फॉर्म एंड सेकंड इज द बीटा एनोमरिक फॉर्म। नाउ सी, इन द केस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जो एनोमरिक फॉर्म का नेचर आपको मिलता है वो नेचर क्या होता है। देखो, मैं यहाँ एक साइक्लिक फॉर्म को शो किया हूँ और फ्यूरानोज फॉर्म को मेंशन किया हूँ। दिस फर्स्ट कार्बन जिसको मैं यहाँ 1 प्राइम कार्बन के तौर पर मेंशन किया हूँ, इस 1 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ एनोमरिक कंडीशन को शो कर रहा हूँ। अगर इस 1 प्राइम कार्बन के केस में OH आप अगर नीचे शो कर रहे हो और H आप ऊपर शो कर रहे हो तो आप इसको डिस्क्राइब करते हो अल्फा एनोमरिक फॉर्म। बट अगर आप OH ऊपर की ओर शो करते हो और H नीचे की ओर शो करते हो तो इसे आप डिस्क्राइब करते हो बीटा एनोमरिक फॉर्म। तो इन केस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जब आप शुगर रेजिड्यूज के केस में एनोमरिक फॉर्म को डिस्क्राइब करते हो तो एनोमरिक फॉर्म आप बीटा मेंशन करते हो, क्योंकि OH का पोजीशन आप ऊपर की ओर शो करते हो और अगर OH का पोजीशन ऊपर की ओर है तो इस कंडीशन में एनोमरिक फॉर्म का नेचर आप कंसीडर करते हो बीटा। अगर OH नीचे की ओर होता तो आप उस कंडीशन में एनोमरिक फॉर्म का नेचर मेंशन करते अल्फा। देखो, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि शुगर मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड के केस में प्रेजेंट होता है वो एक कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि आप इस मॉलिक्यूल के केस में एसिमेट्रिकल कार्बन के प्रेजेंस को शो करते हो। और अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशन शो करता है। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशन। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स आर कायरल कंपाउंड्स और कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशन शो करते हैं। और अगर किसी कंपाउंड को आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के तौर पर कंसीडर कर रहे हो तो इस कंडीशन में जब उस कंपाउंड के सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन परफॉर्म होगा। वो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो जैसे कि इस फिगर में अगर मैं नॉर्मल लाइट को शो कर रहा हूँ
तो नॉर्मल लाइट अनपोलराइज लाइट होता है। अगर इसे आपको प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज करना है तो इसे पोलराइजर से पास करवाना होगा। तो जैसा कि यहाँ पोलराइजर से जब ये अनपोलराइज लाइट पास किया तो ये प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो गया। अब अगर मैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर के सॉल्यूशन से इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाऊंगा, क्योंकि ये राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर कायरल कंपाउंड है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशन को शो करेगा। तो इस सिचुएशन में प्लेन पोलराइज लाइट जब इस सॉल्यूशन से होकर के पास करेगा तो इनका रोटेशन परफॉर्म होगा, और ये रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म हो रहा है तो आप इस कंडीशन में उसे डिस्क्राइब करते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे आप स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या प्लस साइन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म होता है तो इस कंडीशन में आप टर्म अप्लाई करते हो लीवो रोटेटरी, जिसे स्मॉल एल या माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट ये आपके माइंड में क्लियर रहे कि जब आप स्मॉल डी और स्मॉल एल मेंशन करते हो तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है, ये कंपाउंड के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब नहीं करता है। क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करते हो और डीएल सिस्टम को फॉलो करके अगर आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो वहां आप कैपिटल डी और कैपिटल एल मेंशन करते हो। तो अगर मैं कैपिटल डी और कैपिटल एल मेंशन कर रहा हूं डीएल सिस्टम के केस में तो वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, और अगर मैं स्मॉल डी और स्मॉल एल मेंशन करता हूं ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशंस और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिकल कार्बन का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिमेट्रिकल कार्बन के प्रेजेंट होने के कारण ही मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेवियर शो करता है, और कायरल मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेवियर के कारण ही आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्क्राइब करते हो और साथ साथ आप वहां ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशंस भी आप मेंशन करते हो। सी इन केस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, जब आप राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर को डिस्क्राइब करते हो तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर के केस में एट pH 7, जिसे आप फिजियोलॉजिकल pH के तौर पर भी कंसीडर करते हो, आप कोई चार्ज कंडीशन को नहीं शो करते। देयर इज नो चार्ज एट pH 7 इन केस ऑफ द राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। आप इसे अनचार्ज मॉलिक्यूल के तौर पर कंसीडर करते हो, बट ये कंडीशंस में विथ रिस्पेक्ट टू pH मेंशन कर रहा हूं, और यहां मैं pH कंसीडर कर रहा हूं 7, तो 7 pH पर आप यहां कोई चार्ज कंडीशन नहीं शो करते। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, और कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है ये आप डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर डिस्क्राइब करते हो। अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो पोलर होगा। मॉलिक्यूल चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है इसके आधार पर आप पोलैरिटी को डिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि मैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों में से किसी भी मॉलिक्यूल में pH 7 पर कोई चार्ज शो नहीं किया, और चार्ज कंडीशंस नहीं होने के बावजूद भी अगर मैं मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल के तौर पर डिस्क्राइब कर रहा हूं तो ये कंडीशंस डाइपोल मोमेंट के आधार पर डिसाइड होता है। अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, और डाइपोल मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जिस इक्वेशन को नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं उस इक्वेशन का फॉर्म आप इस वे में शो करते हो। और डाइपोल मोमेंट 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से एक पैरामीटर होता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, कि जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कितना पोलर है, और दूसरा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इन 2 पैरामीटर के आधार पर आप किसी मॉलिक्यूल के ओवरऑल डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को आप डिस्क्राइब करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर को पोलर मॉलिक्यूल के तौर पर कंसिडर कर रहा हूं तो वाटर के केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जिस कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं उस कोवलेंट बॉन्ड का नेचर पोलर होता है, और पोलर नेचर इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इस कंडीशन में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर मोर शिफ्टेड होता है, और ऑक्सीजन की ओर मोर शिफ्टेड होने के कारण ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड आप कंसिडर कर रहे हो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, और इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड के कारण ये मॉलिक्यूल ओवरऑल डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को शो कर रहा है। बट डाइपोल मोमेंट के लिए सिर्फ बॉन्ड की पोलैरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉन्ड की पोलैरिटी के साथ साथ मॉलिक्यूल का शेप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल का शेप बॉन्ड डाइपोल को कैंसिल नहीं कर रहा है। क्योंकि आप देखो यहाँ जो बॉन्ड डाइपोल है और यहाँ जो बॉन्ड डाइपोल है
ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, और इस कंडीशन में आप इस मॉलिक्यूल के केस में नेट डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को शो करते हो। अगर ये बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देता तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता। बट अगर यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हो तो ये मॉलिक्यूल के शेप के कारण है कि ये बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के साथ साथ मॉलिक्यूल का शेप भी इंपॉर्टेंट है। और वाटर के केस में आप पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के आधार पर नेट डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को शो करते हो। क्योंकि यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए वाटर को आप पोलर मॉलिक्यूल के तौर पर कंसीडर करते हो। अब अगर आप राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर में से किसी को भी कंसीडर करते हो तो यहाँ आप नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 शो करते हो। और ये कंडीशन इसलिए है कि अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 3' OH ग्रुप को कंसीडर करूँ तो 3' OH में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, और ये कोवलेंट बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ शो कर रहे हो। इस तरह से आप यहाँ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को शो कर रहे हो और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेवियर शो करते हैं। बिकॉज द शुगर मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर, तो जब आप वाटर में शुगर मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी को आप कंसीडर करते हो तो वाटर में ये मॉलिक्यूल हाईली सॉल्युबल कंडीशन को शो करते हैं। इट मीन्स कि शुगर मॉलिक्यूल जो आप न्यूक्लियोटाइड के केस में शो करते हो उसका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन जो है डेवलप करते हैं। तो these are the certain features that is related to the sugar molecule present in case of the nucleotide. आप शुगर मॉलिक्यूल का नेचर पेंटोज शो करते हो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ डी शो करते हो, शुगर साइक्लिक नेचर शो करता है, इसके एनोमरिक फॉर्म को आप डिस्क्राइब करते हो बीटा, इसे आप ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के तौर पर कंसीडर करते हो। फिजियोलॉजिकल पीएच पर इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि आप यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को शो करते हो। क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पोलर है और वाटर के साथ ये इंटरेक्शन शो कर रहा है तो आप मॉलिक्यूल का नेचर आप हाइड्रोफिलिक मेंशन करते हो। ये शुगर पकरिंग कंडीशन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर के नॉन प्लेनर नेचर के कारण शो करते हैं। क्योंकि जब आप राइबोज या डीऑक्सीराइबोज में से किसी भी शुगर को कंसीडर करते हो तो वहां आप एक रिंग स्ट्रक्चर को शो करते हो, और इस रिंग के फॉर्मेशन में 4 कार्बन पार्टिसिपेट करता है, 1' कार्बन, 2' कार्बन, 3' कार्बन, 4' कार्बन, और एक ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है। तो आप इस कंडीशन में आप इस रिंग को डिस्क्राइब कर सकते हो एज ए 5 मेंबर रिंग के तौर पर, या आप इसे 4 कार्बन रिंग के तौर पर भी डिस्क्राइब कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर अगर डिस्क्राइब करूंगा तो इसे 5 मेंबर रिंग के तौर पर डिस्क्राइब करूंगा, और अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर डिस्क्राइब करूंगा तो 4 कार्बन रिंग के तौर पर डिस्क्राइब करूंगा। अब इस रिंग में प्रेजेंट जितने भी मेंबर्स हैं, अगर ये सारे मेंबर एक प्लेन में हैं तो उस कंडीशंस में आप डिस्क्राइब करोगे प्लेनर। लेकिन अगर ये 5 मेंबर्स में कोई भी मेंबर अगर आउट ऑफ प्लेन है, इट मीन्स कि अगर सारे मेंबर एक ही प्लेन में नहीं प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में आप इसे नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। तो अगर मैं रिंग स्ट्रक्चर को सेपरेटली अगर शो करूं तो इस रिंग स्ट्रक्चर में 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर एंड 5 मेंबर्स, अगर ये सारे मेंबर्स अगर एक प्लेन में होता तो इसका नेचर प्लेनर कंसीडर किया जाता, और अगर ये डिफरेंट प्लेन्स में है तो इसे नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। एंड राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज के केस में आपको नॉन प्लेनर कंडीशन मिलता है। आप नॉन प्लेनर कंडीशंस को एक जो फिगर से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ एक पेपर को शो किया हूँ, इस पेपर के 4 कॉर्नर्स हैं, और अगर ये 4 कॉर्नर्स अगर सरफेस से अटैच्ड होता, मैं 3rd कॉर्नर को भी सरफेस पर ही शो करता हूँ। जैसा कि 1st, 2nd, 4th को शो कर रहा हूँ, वैसा ही 3rd कॉर्नर को भी शो करता हूँ। तो इस कंडीशन में मैं इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करता प्लेनर। बट आप फिगर में 1st, 2nd एंड 4th को आप एक प्लेन में देख रहे हो, और जो 3rd है वो इस प्लेन से एबव है। अब ये प्लेन के एबव भी हो सकता है, प्लेन के बिलो भी हो सकता है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो आप इसे नॉन प्लेनर कंसीडर करोगे। तो यहाँ अगर मैं 4 कॉर्नर को कंसीडर किया हूँ, इट मीन्स कि मैं 4 मेंबर को कंसीडर किया हूँ, और राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर के केस में आप 5 मेंबर को कंसीडर करते हो।
और 5 मेंबर्स में अगर एक भी मेंबर आउट ऑफ प्लेन है तो मॉलिक्यूल को ओवरऑल आप नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के तौर पर कंसिडर करोगे। अब शुगर पकरिंग में नॉर्मली हम लोग 2 डिफरेंट कंडीशंस को शो करते हैं। उनमें से एक कंडीशन को शो करते हैं इन्वेलप फॉर्म के तौर पर और दूसरे कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं ट्विस्टेड फॉर्म के तौर पर। अब इन्वेलप एंड ट्विस्टेड फॉर्म में क्या फर्क है, अब इस डायग्राम से चेक करो। अगर आउट ऑफ द 5 मेंबर सिर्फ एक मेंबर आउट ऑफ प्लेन अगर हो तो उस कंडीशन में आप टर्म अप्लाई करते हो इन्वेलप। बट अगर 2 मेंबर्स आउट ऑफ प्लेन हो तो उस कंडीशन में आप टर्म अप्लाई करते हो ट्विस्टेड। तो अगर मैं 5 मेंबर्स में से किसी भी एक मेंबर को आउट ऑफ प्लेन अगर शो कर रहा हूं, और ये कंडीशंस नॉर्मली हम लोग 2 प्राइम कार्बन और 3 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में शो करते हैं। तो अगर 2 प्राइम या 3 प्राइम में से कोई एक मेंबर आउट ऑफ प्लेन है तो ये इन्वेलप फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर 2 प्राइम भी आउट ऑफ प्लेन है और 3 प्राइम भी आउट ऑफ प्लेन है तो ये ट्विस्टेड कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन्वेलप वाली सिचुएशन में 1 मेंबर आउट ऑफ प्लेन एंड ट्विस्टेड कंडीशन में 2 मेंबर्स आउट ऑफ प्लेन। और ये आउट ऑफ प्लेन कंडीशंस या तो आप 2 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में शो करते हो या 3 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में शो करते हो। सी, अगर मैं इन्वेलप फॉर्म को मेंशन कर रहा हूं तो एक मेंबर आउट ऑफ प्लेन होगा, चाहे वो मेंबर 2 प्राइम हो या 3 प्राइम हो। अब जैसे मैं पेपर के एग्जाम्पल में शो किया था कि 4 कॉर्नर्स हैं और 3 कॉर्नर्स एक प्लेन में है और एक कॉर्नर आउट ऑफ प्लेन है। तो थर्ड कॉर्नर अगर मैं आउट ऑफ प्लेन शो किया था तो वो अबव द प्लेन शो किया था, और मैंने कंडीशन मेंशन किया था कि वो अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है। तो वही कंडीशंस आप यहां भी शो करते हो। जब आउट ऑफ प्लेन होगा तो अगेन 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन हो सकता है कि 2 प्राइम या 3 प्राइम कार्बन टुवर्ड्स 5 प्राइम कार्बन, या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि 2 प्राइम और 3 प्राइम कार्बन अवे फ्रॉम द 5 प्राइम कार्बन। यहां मैं 5 प्राइम कार्बन को रेफरेंस के तौर पर शो कर रहा हूं कि 2 प्राइम कार्बन और 3 प्राइम कार्बन टुवर्ड्स 5 प्राइम कार्बन है या अवे फ्रॉम द 5 प्राइम कार्बन। अगर आप 5 प्राइम कार्बन के प्लेस पर किसी अदर कंपाउंड को रेफरेंस के तौर पर यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। अब जैसे जब नाइट्रोजनस बेस के तौर पर प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इस शुगर के साथ कोवलेंटली ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में आप नाइट्रोजनस बेस के रिस्पेक्ट में भी मेंशन कर सकते हो कि 2 प्राइम एंड 3 प्राइम कार्बन टुवर्ड्स नाइट्रोजनस बेस है या अवे फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेस। बट बेटर ये होगा कि आप 5 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में मेंशन करो। अगर 2 प्राइम एंड 3 प्राइम कार्बन टुवर्ड्स 5 प्राइम कार्बन है तो इस कंडीशन में आप टर्म यूज करते हो एंडो, और अवे फ्रॉम द 5 प्राइम कार्बन तो आप टर्म अप्लाई करते हो एक्जो। तो अगर मैं एक्जो कंडीशन शो कर रहा हूं तो C2 प्राइम और C3 प्राइम कार्बन अवे फ्रॉम द C5 प्राइम कार्बन होगा, और अगर एंडो कंडीशन शो कर रहा हूं तो C2 प्राइम और C3 प्राइम कार्बन टुवर्ड्स द C5 प्राइम कार्बन होगा। तो इस तरह से आप राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर के केस में आप शुगर पकरिंग वाले कंडीशन को शो करते हो, और शुगर पकरिंग में भी आप इन्वेलप वाले कंडीशंस को मेंशन करते हो, आप ट्विस्टेड कंडीशंस को यहां मेंशन नहीं करते हो। अगर मैं एंडो कंडीशंस को डायग्रामेटिकली अगर डिस्प्ले करूं और 2 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में भी और 3 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में भी, तो मैं डायग्रामेटिकली इस वे में शो करूंगा कि अगर 2 प्राइम कार्बन टुवर्ड्स C5 प्राइम कार्बन अगर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में आप इसको डिस्क्राइब करोगे C2 प्राइम एंडो। और सेकेंड कंडीशन, अगर 3 प्राइम कार्बन 5 प्राइम कार्बन के टुवर्ड्स प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में इसे डिस्क्राइब करेंगे C3 प्राइम एंडो के तौर पर। तो इस तरह से राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर के केस में आप नॉन प्लेनर कंडीशन शो करते हो, और इसी नॉन प्लेनर कंडीशन के कारण आप शुगर पकरिंग को डिस्क्राइब करते हो। और शुगर पकरिंग में भी इन्वेलप और ट्विस्टेड में से आप इन्वेलप वाले कंडीशंस को यहाँ मेंशन करते हो, और इन्वेलप में या तो आप एंडो कंडीशन शो करते हो या एक्जो कंडीशन शो करते हो। और मैं यहाँ एक्जो और एंडो कंडीशन या तो 2 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में शो करते हैं या 3 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में शो करते हैं। तो यहाँ जो फिगर मैं डिस्प्ले किया हूँ ये 2 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में है और यहाँ 3 प्राइम कार्बन के रिस्पेक्ट में। देखो, जब आप डीएनए मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हो तो डीएनए मॉलिक्यूल के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। या तो आप मेंशन करो डिफरेंट फॉर्म्स या आप मेंशन करो डिफरेंट कन्फर्मेशन, सबके मीनिंग से। आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, तो आप डिफरेंट फॉर्म्स को शो करते हो, जेड फॉर्म्स। देखो, जो शुगर रेजिड्यूज ए फॉर्म में प्रेजेंट है जिसको आप सिंपली बोल सकते हो ए डीएनए के तौर पर, वहां C3 प्राइम एंडो वाले कंडीशन प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया।
तो अगर आप ए फॉर्म ऑफ डीएनए को कंसीडर करते हो, जिसको आप मेंशन कर सकते हो ए डीएनए, तो वहां शुगर पकरिंग का नेचर आपको मिलता है C3' एंडो। बट बी डीएनए के केस में आपको कंडीशन मिलता है C2' एंडो। जेड डीएनए के केस में आपको दोनों कंडीशंस मिलते हैं। जब मैं जेड डीएनए को एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वहां मैं डिस्क्राइब करूंगा। आप फॉर द टाइम बिंग इसको मान के चलो कि यहाँ C3' एंडो कंडीशन भी होता है और C2' एंडो कंडीशन भी होता है, दोनों कंडीशन प्रोजेक्ट होते हैं। जब आप आरएनए का केस कंसिडर करते हो तो यहाँ सिर्फ आपको C3' एंडो कंडीशन मिलते हैं। अगर मैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड के केस को अगर कंसिडर करूं तो यहाँ आप C3' एंडो कंडीशंस ही शो करते हो। तो अगर मैं एक कन्फर्मेशन की बात करूं डीएनए के, तो वहां सिर्फ C3' एंडो मिलता है। बी डीएनए के केस में सिर्फ C2' एंडो वाले कंडीशन मिलते हैं। जेड डीएनए के केस में आप 3' एंडो और 2' एंडो आप दोनों कंडीशन शो करते हो। आरएनए के केस में C3' एंडो कंडीशन और डीएनए आरएनए हाइब्रिड के केस में C3' एंडो कंडीशन आप शो करते हो। जिन इंफॉर्मेशन को मैं कवर किया हूं, उन इंफॉर्मेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। लेट अस ट्राई दीज क्वेश्चंस। कायरलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, मैंने कहा था कि जो शुगर रेजिड्यू न्यूक्लियोटाइड के केस में प्रेजेंट होता है वो कायरल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप वहां एसिमेट्रिकल कार्बन के प्रेजेंस को शो करते हो। तो अगर शुगर रेजिड्यू जो आप न्यूक्लियोटाइड के केस में शो कर रहे हो अगर वो कायरल मॉलिक्यूल है, तो इस शुगर मॉलिक्यूल से बना न्यूक्लियोटाइड भी कायरल मॉलिक्यूल है। अगर न्यूक्लियोटाइड अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो न्यूक्लियोटाइड से जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है वो भी कायरल मॉलिक्यूल है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के तौर पर अगर आप डीएनए कंसीडर करते हो तो डीएनए भी कायरल नेचर को शो करता है। तो यहाँ अगर मेंशन है कायरलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू नाइट्रोजनस बेस, नहीं। बेस स्टैकिंग, ये तो इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नॉट। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस, ये इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिस शुड नॉट बी आंसर। जो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर है उनके कारण आप न्यूक्लिक एसिड के केस में कायरलिटी को शो करते हो। तो यहाँ कंडीशन जो है डीएनए के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ कायरल नेचर किसके कारण डेवलप होगा, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के कारण डेवलप होगा। शुगर पकरिंग इन डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड इज एक्सक्लूसिवली, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड के केस में पूछा जा रहा है। अब ये डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड का नेचर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और आरएनए डीएनए हाइब्रिड भी हो सकता है, क्योंकि इन सबों का नेचर डबल स्टैंडर्ड है। अब यहां मेंशन किया गया है C2' एंडो इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखो मैंने मेंशन किया था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में C2' एंडो भी होता है और C3' एंडो भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आप डीएनए के कौन से कंफर्मेशन या फॉर्म्स को कंसीडर कर रहे हो। तो दिस शुड नॉट बी द आंसर। C3' एंडो इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि आप दोनों कंडीशन शो करते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंफर्मेशन को कंसीडर कर रहे हो। अगर आप जेड कंफर्मेशन की बात करोगे तो आप दोनों शो करोगे, ए कंफर्मेशन की बात करोगे तो C3' एंडो शो करोगे, और अगर बी कंफर्मेशन की बात करोगे तो C2' एंडो शो करोगे। क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कंफर्मेशन कौन सा है, तो इसलिए यहाँ न तो ए ऑप्शन करेक्ट है न बी ऑप्शन करेक्ट है। C2' एंडो इन डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के केस में मैंने मेंशन किया था, आरएनए के केस में ही मैंने मेंशन किया था, अब वो डबल स्टैंडर्ड हो या सिंगल स्टैंडर्ड हो, आप वहां C3' एंडो कंडीशन शो करते हो, जबकि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है C2' एंडो। C3' एंडो इन हाइब्रिड डुप्लेट्स विथ वन स्टैंड डीएनए एंड अदर स्टैंड आरएनए, आप यहाँ कंडीशन क्या शो करते हो, तो C3' एंडो वाले कंडीशन को शो करते हो। देखो ये तो मैं डिस्कस किया हूँ विथ रिस्पेक्ट टू शुगर रेजिड्यू। किसी भी न्यूक्लियोटाइड में आप शुगर रेजिड्यूज के साथ साथ नाइट्रोजनस बेस को शो करते हो और फॉस्फेट को शो करते हो। नॉट सी द केस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, कि नाइट्रोजनस बेस का नेचर क्या होता है। इन केस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेस को आप शो करते हो।
One form of the nitrogenous base is termed as the pyrimidine, and second form of the nitrogenous base is termed as the purine. तो फर्स्ट सी द फीचर्स रिलेटेड टू द प्यूरिन एंड pyrimidine. देखो, जब आप प्यूरिन और pyrimidine को कंसीडर करते हो तो प्यूरिन के तौर पर एडेनिन, ग्वानिन और pyrimidine के तौर पर साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन का प्रेजेंस आप शो करते हो. अगर मैं यूरेसिल की बात करूं तो इनका प्रेजेंस आप मेनली आरएनए के केस में शो करते हो, और अगर थाइमिन को अगर कंसीडर करो तो आप इनके प्रेजेंस को डीएनए में शो करते हो. बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन आप डीएनए और आरएनए दोनों के केसेस में शो करते हो. अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो प्यूरिन इज ए 9 मेंबर रिंग. अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर यहाँ कंसीडर करो और नंबर ऑफ मेंबर्स को अगर आप काउंट करो तो यहाँ टोटल 9 मेंबर्स आपको प्रेजेंट मिलते हैं. बट इन केस ऑफ द pyrimidine जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें 6 मेंबर्स जो है प्रेजेंट. इसलिए मैं यहाँ प्यूरिन को 9 मेंबर रिंग के तौर पर जो है शो किया हूँ और pyrimidine को 6 मेंबर्स रिंग के तौर पर शो किया हूँ. एडेनिन के केस में और ग्वानिन के केस में, इट मीन्स अगर प्यूरिन के केस में अगर आप नंबरिंग को परफॉर्म करते हो तो नंबरिंग 1, 2, अगर आप ऑर्डर को अगर आप चेक करो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है. ये कन्वेंशन है कि आप जब यहाँ नंबरिंग परफॉर्म करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परफॉर्म करते हो. जब आप pyrimidine के केस में आप नंबरिंग परफॉर्म करते हो तो आप यहाँ क्लॉकवाइज कंडीशन को जो है मेंशन करते हो. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ आप नंबरिंग को परफॉर्म करते हो. तो एडेनिन एंड ग्वानिन क्योंकि ये दोनों प्यूरिन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब आप यहाँ नंबरिंग परफॉर्म करते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परफॉर्म करते हो. और जब आप साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन जो कि pyrimidine को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप यहाँ नंबरिंग परफॉर्म करते हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परफॉर्म करते हो. एक और इंफॉर्मेशन जो है जो आप माइंड में रखना, अगर आप यहाँ एडनिन के केस में या ग्वानिन के केस में, इट मीन्स अगर मैं प्यूरिन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेवंथ पोजीशन एंड नाइन्थ पोजीशन पर आप नाइट्रोजन के प्रेजेंस को शो करते हो और रिमेनिंग पोजीशन पर आप कार्बन के प्रेजेंस को शो करते हो. तो ये हमेशा आपके माइंड में क्लियर है कि फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, चाहे आप प्यूरिन के तौर पर एडेनिन और ग्वानिन में से किसी को भी कंसीडर करो. बट जब आप साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन को कंसीडर करते हो, इट मीन्स जब आप pyrimidine को कंसीडर करते हो तो यहाँ चूंकि 6 मेंबर रिंग आपको प्रेजेंट मिलता है तो नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है और रिमेनिंग पोजीशन पर आप यहाँ कार्बन के प्रेजेंस को शो करते हो. अगर आप एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर को चेक करो, यहाँ आपको इमेडोजोल रिंग का प्रेजेंस आपको मिलता है. तो इन केस ऑफ द प्यूरिन यू विल गेट द इमेडोजोल रिंग स्ट्रक्चर, और वो प्यूरिन एडेनिन भी हो सकता है और ग्वानिन भी हो सकता है. बट इन केस ऑफ द pyrimidine you will not get the imidazole ring structure. तो इमेडोजोल रिंग स्ट्रक्चर का प्रेजेंस आप प्यूरिन के केस में शो करते हो और pyrimidine के केस में आप नहीं शो करते हो. अगर आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अगर आप डिटेल्स में एनालाइज करो तो आप एक कंडीशंस को आप यहाँ नोटिस करोगे कि अमीनो ग्रुप का प्रेजेंस आप एडेनिन के केस में शो करते हो, ग्वानिन के केस में आप शो करते हो, साइटोसिन के केस में शो करते हो, थाइमिन के केस में आप नहीं शो करते हो और यूरेसिल के केस में आप नहीं शो करते. इट मीन्स कि आप एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन के केस में आप अमीनो ग्रुप को शो करते हो. इट मीन्स इनका डिएमिनेशन हो सकता है बट यूरेसिल और थाइमिन का डिएमिनेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. तो ये डिफरेंसेस भी जो है आप माइंड में रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी जो है पूछे गए हैं. और अगर मैं एडेनिन को अल्टरनेटिवली अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूं लाइक दिस. 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो मैं मेंशन कर सकता हूं 6 अमीनो प्यूरिन. मैं एडेनिन को बोल सकता हूं 6 अमीनो प्यूरिन क्योंकि यहाँ 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है और ये चूंकि प्यूरिन है तो मैं मेंशन कर सकता हूँ 6 अमीनो प्यूरिन. अगर मैं साइटोसिन को मेंशन करना तो 2 ऑक्सो 4 अमीनो pyrimidine. तो मैं साइटोसिन को मेंशन किया हूं 2 ऑक्सो 4 अमीनो pyrimidine के तौर. इसी मैनर में आप ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो.
देखो, अगर आप पायरिमिडीन या प्यूरिन में से किसी को भी अगर कंसीडर करो, तो यहाँ आप हेट्रोसाइक्लिक कंडीशन शो करते हो। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंडीशन। देखो, अगर आपने किसी कंपाउंड को सेलेक्ट किया और उस कंपाउंड में आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर को अगर आप शो कर रहे हो, और उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में कार्बन के अलावे कोई अदर एलिमेंट भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप उसे डिसाइड करते हो हेट्रोसाइक्लिक। क्योंकि मैं यहाँ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंसीडर किया हूँ, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में सिर्फ कार्बन पार्टिसिपेट नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम द कार्बन आप यहाँ नाइट्रोजन को भी शो कर रहे हो, तो आप इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के तौर पर कंसीडर करो। अब आप प्यूरिन के स्ट्रक्चर और पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करो, तो दोनों केसेज में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इसलिए आप प्यूरिन और पायरिमिडीन को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के तौर पर कंसीडर करते हो। बट अगर किसी कंपाउंड में जैसे कि बेंजीन है, आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन के प्रेजेंस को शो कर रहे हो, कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट अगर नहीं प्रेजेंट है, तो आप उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड के तौर पर कंसीडर करते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। और आप नाइट्रोजनस बेस के तौर पे प्यूरिन एंड पायरिमिडीन को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के तौर पर कंसीडर करते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नाइट्रोजनस बेस है वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए? पहला तो मॉलिक्यूल साइक्लिक होने चाहिए, प्लानर होने चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, एंड हकेल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो मैं यहाँ नाइट्रोजनस बेस को एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि आप पायरिमिडीन या प्यूरिन में से किसी भी नाइट्रोजनस बेस को अगर आप कंसीडर करो, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो क्राइटेरिया है वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लानर नेचर शो करता है, कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। आप यहाँ अल्टरनेट, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले कंडीशन को शो कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ कंजुगेटेड सिस्टम है, और हकेल्स रूल को ये फॉलो कर रहे हैं। तो इसके आधार पर हम लोग इस बात को मेंशन करते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस के तौर पर प्यूरिन एंड पायरिमिडीन प्रेजेंट होता है, वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। और नाइट्रोजनस बेस एक प्लानर मॉलिक्यूल है। प्लानर मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि अगर आप प्यूरिन के केस में 9 मेंबर रिंग को कंसीडर करते हो और पायरिमिडीन के केस में 6 मेंबर रिंग को कंसीडर करते हो, तो रिंग के सारे मेंबर्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि रिंग के मेंबर्स जो है अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट है, जैसा कि कंडीशन आपने राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर के केस में आपने देखा था। वहां मेंबर्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ रिंग में प्रेजेंट सारे मेंबर्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, इसलिए आप मॉलिक्यूल के नेचर को यहाँ प्लेनर कंसीडर करते हो। चूंकि मॉलिक्यूल को आप एरोमेटिक मॉलिक्यूल के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, तो इसका नेचर जो है नॉन पोलर होता है। ये वाटर में जो है सॉल्युबिलिटी बहुत कम शो करता है, और वाटर में अगर सॉल्युबिलिटी अगर कम शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनका नेचर आप हाइड्रोफोबिक कंसीडर करते हो, तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है, और वाटर में इनसॉल्युबल कंडीशन को शो करता है। तो अगर आप राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर को अगर आप कंपेयर करो नाइट्रोजनस बेस से, तो राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर हाइड्रोफिलिक नेचर शो कर रहा था, पोलर नेचर शो कर रहा था, वाटर में सॉल्युबल कंडीशन शो कर रहा था। बट नाइट्रोजनस बेस उसके अपोजिट नॉन पोलर कंडीशन शो कर रहा है, हाइड्रोफोबिक कंडीशन शो कर रहा है, और वाटर इनसॉल्युबल कंडीशन शो कर रहा है। और शुगर रेजिड्यूज के केस में आप नॉन प्लानर कंडीशन शो करते हो, इसलिए आप वहां शुगर पकरिंग की बात करते हो। यहां आप प्लानर कंडीशंस को जो है मेंशन करते हो। देखो, नाइट्रोजनस बेस के केस में जब आप एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी को अगर आप मेजर करते हो, तो नाइट्रोजनस बेस के तौर पर चाहे प्यूरिन हो या पायरिमिडीन हो, आप यहाँ रिंग स्ट्रक्चर को शो करते हो, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को शो करते हो। इट मीन्स आप हाईली कंजुगेटेड सिस्टम को शो करते हो, और हाईली कंजुगेटेड सिस्टम होने के कारण यहाँ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और उसी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये 260 नैनोमीटर पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो है शो करता है। तो जब आप नाइट्रोजनस बेस के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकल डेंसिटी को या एब्जॉर्बेंस को आप मेंशन करते हो, तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर पर जो है शो करता है। हालांकि एडनिन के केस में, ग्वानिन के केस में, साइटोसिन के केस में, यूरेसिल और थाइमिन के केस में एब्जॉर्बेंस के वैल्यूज में थोड़ी डिफरेंसेस आप शो करते हो, और वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। बट ओवरऑल जब आप एब्जॉर्बेंस को मेंशन करते हो, तो इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम
at 260 नैनोमीटर। देखो नाइट्रोजनस बेस को जब आप फिजियोलॉजिकल पीएच पर या पीएच 7 पर कंसीडर करते हो तो ये अनचार्ज मॉलिक्यूल के तौर पर प्रेजेंट होता है। और यही कंडीशंस मैंने जो है शुगर रेजिड्यूज के रिस्पेक्ट में भी मेंशन किया कि वो एक अनचार्ज मॉलिक्यूल के तौर पर प्रेजेंट होता है। बट अगर आप पीएच को चेंज करते हो तो नाइट्रोजनस बेस पर जो ओवरऑल चार्ज है उसका नेचर चेंज होगा। अब मैं उस कंडीशंस को जो है यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। सपोज मैं एक नाइट्रोजनस बेस के तौर पे यहाँ एडनिन को शो किया और पीएच 7 पर एडनिन अगर प्रेजेंट है तो यहाँ अनचार्ज कंडीशन है। आप देखो यहाँ कहीं भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। बट जब आप पीएच को 7 से पीएच 3 करते हो तो जब आप पीएच को चेंज करते हो फ्रॉम 7 to 3 इट मीन्स कि आप प्रोटॉन के कंसेंट्रेशन को आप इनहांस करते हो। प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन इनहांस होने का मतलब है कि यहाँ मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन होगा। अब देखो यहाँ मैं एक प्रोटोनेटेड कंडीशन को शो किया। अब ये प्रोटोनेटेड कंडीशंस में फर्स्ट पोजीशन पर शो कर रहा हूँ। अब अगर मैं पीएच को और फर्दर अगर डिक्रीज करूं तो प्रोटोनेशन फर्दर जो है यहाँ परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट प्रोटोनेशन जो है आप यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर शो कर रहे हो। सेकेंड प्रोटोनेशन का साइट आप शो करते हो 7। थर्ड प्रोटोनेशन का साइट आप शो करते हो 3rd। इट मीन्स कि अगर आप पीएच को 3 से फर्दर अगर आप लोअर करते हो यानी प्रोटॉन के कंसेंट्रेशन को और फर्दर इंक्रीज करते हो तो 7th पोजीशन पर भी प्रोटोनेशन होगा। और अगर फर्दर और डिक्रीज करते हो तो 3rd पोजीशन पे भी प्रोटोनेशन होगा। तो ये मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कौन कौन सा पोजीशन है एडेनिन का जहां आप प्रोटोनेशन वाले कंडीशन को शो करते हो अगर आप पीएच को डिक्रीज कर रहे हो। तो अगर मैं पीएच को डिक्रीज किया फ्रॉम द 7 to 3rd तो सबसे पहले प्रोटोनेशन जो है फर्स्ट पोजीशन पर परफॉर्म हुआ क्योंकि फर्स्ट पोजीशन इज द मोस्ट बेसिक साइट। क्योंकि जो सबसे बेसिक साइट होगा वहां सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा और उनके बाद फर्दर प्रोटोनेशन हुआ। अगर आप पीएच को 3 से जो है 2 से 1 अगर आप डिक्रीज करते हो तो फर्दर प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन फर्स्ट के बाद 7th पोजीशन पर, 7th के बाद 3rd पोजीशन पर होगा। बट आप कम से कम एक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखो कि अगर आप पीएच को लो करते हो, प्रोटॉन के कंसेंट्रेशन को इनहांस करते हो तो सबसे पहले प्रोटोनेशन जो है किस पोजीशन पर परफॉर्म होगा एडेनिन के केस में। लेकिन अगर मैं ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल के रिस्पेक्ट अगर बात करूं तो डिफरेंट पोजीशन पर यहाँ प्रोटोनेशन परफॉर्म होता है। एडनिन के केस में फर्स्ट पोजीशन पर, ग्वानिन के केस में फर्स्ट प्रोटोनेशन 7th पोजीशन पर। इसके पहले मैंने क्या मेंशन किया, एडनिन के केस में फर्स्ट प्रोटोनेशन फर्स्ट पोजीशन पर, सेकेंड प्रोटोनेशन 7th पोजीशन पर, और मैं ग्वानिन के केस में यहाँ फर्स्ट प्रोटोनेशन को मेंशन कर रहा हूँ 7th पोजीशन पर। साइटोसिन के केस में 3rd पोजीशन, थाइमिन एंड यूरेसिल के केस में 4th पोजीशन प्रोटोनेशन के प्रोसेस में इंटर करता है। और ये मैं फर्स्ट प्रोटोनेशन के प्रोसेस को यहाँ मेंशन किया, सेकेंड एंड थर्ड प्रोटोनेशन के प्रोसेस को मेंशन नहीं किया। देखो अगर आप पीएच को डिक्रीज करते हो तो नाइट्रोजनस बेस का प्रोटोनेशन होता है, प्रोटॉन का एडिशन होता है। और जब प्रोटॉन का एडिशन अगर होगा तो उस कंडीशन में नेट चार्ज जो है पॉजिटिव डेवलप होगा, या तो अनचार्ज कंडीशन रहेगा या नेट चार्ज पॉजिटिव जो है डेवलप होगा। लेकिन अगर मैं कंडीशंस को अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्रोसीड करूँ, यानी पीएच को अगर मैं 7 से इंक्रीज करके अगर 10 करता हूँ तो इट मीन्स कि प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ नाइट्रोजनस बेस प्रोटोनेशन नहीं शो करेगा, डी प्रोटोनेशन शो करेगा। और डी प्रोटोनेशन सबसे पहले कहाँ होगा, तो अगर मैं यहाँ ग्वानिन एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पर कंसिडर किया तो ग्वानिन के केस में जो मोस्ट एसिडिक साइट होता है वो फर्स्ट साइट होता है। देखो मैं एडेनिन के केस में मेंशन किया कि द मोस्ट बेसिक साइट इज द फर्स्ट साइट। यहां मैं क्या मेंशन कर रहा हूं, मोस्ट एसिडिक साइट इज द फर्स्ट साइट। और जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो सबसे पहले प्रोटॉन को लूज करेगा। तो इसलिए यहां सबसे पहले प्रोटॉन जो है रिमूव हुआ और प्रोटॉन के रिमूवल के बाद या नेगेटिव चार्ज वाले कंडीशन डेवलप हुए। इसलिए मैंने मेंशन किया था कि जब आप मेंशन करते हो कि नाइट्रोजनस बेस पर कोई चार्ज नहीं है तो आप ये पीएच के रिस्पेक्ट में मेंशन करते हो, और जब आप पीएच 7 कंसीडर करते हो तो आप अनचार्ज कंडीशन शो करते हो। जैसा कि पीएच 7 में आप ग्वानिन में भी अनचार्ज कंडीशन और एडनिन में भी अनचार्ज कंडीशन शो कर दो।
बट जब आप पीएच को इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, प्रोटोनेशन होता है, डीप्रोटोनेशन होता है, तो उस कंडीशन में आप नेट चार्ज वाले कंडीशन शो करते हो। इसलिए बिना पीएच को मेंशन किए आप चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है कोट नहीं कर सकते। नाइट्रोजनस बेस अंडरगो फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, और डीएमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। जैसा कि मैं मेंशन किया था अभी कुछ देर पहले कि एडेनिन के केस में आप अमीनो ग्रुप के प्रेजेंस को शो करते हो, ग्वानिन के केस में अमीनो ग्रुप के प्रेजेंस को शो करते हो, साइटोसिन के केस में आप अमीनो ग्रुप के प्रेजेंस को शो करते हो। अगर साइटोसिन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म 5 मिथाइल साइटोसिन का फॉर्म डेवलप होता है, तो यहां भी आप अमीनो ग्रुप को शो करते हो, क्योंकि साइटोसिन के केस में अगर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो 5 मिथाइल साइटोसिन के केस में भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। बट मैंने मेंशन किया था कि यूरेसिल और थायमीन के केस में अमीनो ग्रुप नहीं होता, इसलिए आप यूरेसिल और थायमीन के केस में डिएमिनेशन के प्रोसेस को नहीं शो करते। आप डिएमिनेशन के प्रोसेस को कहां शो करते हो? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और साइटोसिन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे आप डिस्क्राइब करते हो 5 मिथाइल साइटोसिन। अब अगर आप एडेनिन के केस में डिएमिनेशन शो करते हो, तो डिएमिनेशन के बाद यहाँ जो नाइट्रोजनस बेस का फॉर्म डेवलप होता है उसे कहते हैं हाइपोजेंथिन। ग्वानिन के केस में आप नाइट्रोजनस बेस की जिस फॉर्म को शो करते हो दैट इज द जेंथिन। साइटोसिन के केस में नाइट्रोजनस बेस का जो फॉर्म डेवलप होता है दैट इज द यूरेसिल। और 5 मिथाइल साइटोसिन के केस में नाइट्रोजनस बेस का फॉर्म जो डेवलप होता है उसे कहते हैं थायमिन। इसे आपको मेमोराइज करना होगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड कि डिएमिनेशन के प्रोसेस से एडेनिन कौन सा नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म को डेवलप करेगा, ग्वानिन कौन सा डेवलप करेगा, साइटोसिन और 5 मिथाइल साइटोसिन के केस में कौन सा फॉर्म डेवलप होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब मैं म्यूटेशन वाले टॉपिक को कवर करूंगा तो वहां फिर इनके एप्लीकेशंस को मैं बताऊंगा। सी नाइट्रोजनस बेस के केस में टॉटोमेरिक शिफ्ट वाले कंडीशंस को भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉटोमेरिक शिफ्ट, और नाइट्रोजनस बेस के केस में जब टॉटोमेरिक शिफ्ट वाले कंडीशन होंगे तो कौन सा फॉर्म डेवलप होगा। देखो, अगर आप किसी भी नाइट्रोजनस बेस को कंसीडर करते हो, चाहे वो एडनिन हो, ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, थाइमिन हो, अगर किसी भी नाइट्रोजनस बेस को आप कंसीडर करते हो तो इन सबों का एक कॉमन फॉर्म होता है जिसको स्टेबल फॉर्म के तौर पे भी आप कंसीडर करते हो, और इसका एक रेयर फॉर्म भी होता है। इट मीन्स कि आप अगर एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन में से किसी को भी कंसीडर करते हो तो इनके टू टॉटोमेरिक स्टेट्स होते हैं। एक को आप डिस्क्राइब करते हो कॉमन या स्टेबल टॉटोमेरिक स्टेट, और दूसरे को आप डिस्क्राइब करते हो रेयर टॉटोमेरिक स्टेट। अगर मैं थाइमिन के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, मैं आगे एडनिन और ग्वानिन के रिस्पेक्ट में भी मेंशन करूंगा, पहले आप कंडीशन थाइमिन के रिस्पेक्ट में चेक करो। अगर ये थाइमिन नाइट्रोजनस बेस के तौर पर अगर मैं शो कर रहा हूं, तो आप इसके थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहां आप कीटोनिक ग्रुप को शो कर रहे हो, CO फंक्शनल ग्रुप के तौर पर शो कर रहे हो फोर्थ पोजीशन पर। इसे आप डिस्क्राइब करते हो कीटो फॉर्म, और ये कॉमन फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म। लेकिन जो हाइड्रोजन मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन अपने पोजीशन को चेंज करता है। तो जब ये हाइड्रोजन अपने पोजीशन को चेंज करता है और फ्रॉम द थर्ड पोजीशन से ये फोर्थ पोजीशन पर मूव करता है, इसे कहते हैं टॉटोमेरिक शिफ्ट। और उस टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण कंडीशन क्या डेवलप हुआ? तो कंडीशन ये डेवलप हुआ कि जो कीटो फॉर्म था वो इनॉल फॉर्म में डेवलप हो गया, क्योंकि आप यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो है फॉर्मेशन को शो कर रहे हो। तो थाइमिन का जो टॉटोमेरिक स्टेट कॉमन या स्टेबल टॉटोमेरिक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है दैट इज द कीटो फॉर्म, और हाइड्रोजन के पोजीशन के चेंज होने के कारण जो रेयर फॉर्म डेवलप हुआ दैट इज द इनॉल फॉर्म। अगर आप थाइमिन के केस में इस कंडीशन को शो करते हो तो ये कंडीशन जो है साइटोसिन में भी है। अगर मैं साइटोसिन के केस को अगर कंसीडर करूं, तो साइटोसिन का जो कॉमन और स्टेबल टॉटोमेरिक स्टेट होता है दैट इज द अमीनो स्टेट या अमीनो फॉर्म। अमीनो फॉर्म इसलिए क्योंकि अगर आप इसके फोर्थ कार्बन को अगर आप सिलेक्ट करो, तो फोर्थ कार्बन के साथ ये अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, और ये प्राइमरी अमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इस पर्टिकुलर फॉर्म को डिस्क्राइब किया गया अमीनो फॉर्म। बट अगर इस अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन
पोजीशन को चेंज करता है और वो हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मूव करता है, तो फिर आप यहाँ इम्यूनो ग्रुप को शो करते हो। और जब आप यहाँ इम्यूनो ग्रुप को शो करते हो तो इसे आप डिस्क्राइब करते हो इम्यूनो फॉर्म। तो टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अमीनो फॉर्म किसमें चेंज हुआ? इम्यूनो फॉर्म। और कीटो फॉर्म किसमें चेंज हुआ? तो इनॉल फॉर्म। तो अगर मैं एडेनिन का केस अगर लेता हूँ तो एडेनिन का जो कॉमन टॉटोमेरिक स्टेट होता है दैट इज द अमीनो। ग्वानिन का कॉमन टॉटोमेरिक स्टेट होता है दैट इज द कीटो। साइटोसिन का कॉमन टॉटोमेरिक स्टेट होता है दैट इज द अमीनो। थायमीन का कॉमन टॉटोमेरिक स्टेट होता है दैट इज द कीटो। तो इस तरह से अगर एडेनिन का कॉमन टॉटोमेरिक स्टेट अगर अमीनो है तो इसका रेयर टॉटोमेरिक स्टेट इम्यूनो होगा। ग्वानिन का अगर कॉमन टॉटोमेरिक स्टेट अगर कीटो है तो रेयर टॉटोमेरिक स्टेट इसका इनॉल होगा। और एक चीज आप ये भी ध्यान में रखना कि अगर एडेनिन थायमिन के साथ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग अगर परफॉर्म कर रहा है तो एडेनिन भी अपने मोस्ट कॉमन टॉटोमेरिक स्टेट में है और थायमिन भी मोस्ट कॉमन टॉटोमेरिक स्टेट में। क्योंकि अगर आप एडेनिन के मोस्ट कॉमन टॉटोमेरिक स्टेट को अगर कंसीडर करते हो तो दैट इज अमीनो। बट यही अगर एडेनिन अमीनो से अगर इम्यूनो टॉटोमेरिक स्टेट में चेंज हो जाएगा तो इसका पेयरिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। अब ये इस पर्टिकुलर स्टेट में ये थायमिन के साथ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग जो है परफॉर्म नहीं करेगा, ये थायमिन की जगह साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग जो है परफॉर्म करेगा। तो दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉटोमेरिक शिफ्ट, जिसे मैं पॉइंट म्यूटेशन के दौरान भी जो है एक्सप्लेन करूंगा। Now try this question. Which nitrogen of adenosine gets protonated if the pH of the nucleoside is lowered from 7 to 3? देखो यहां अगर एडिनोसिन अगर मेंशन है तो ये न्यूक्लियोसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इस न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस के तौर पर आप क्या शो कर रहे हो? एडेनिन। तो जब आप पीएच को 7 से 3 करते हो तो एडेनिन का प्रोटोनेशन होता है और फर्स्ट पोजीशन जहां प्रोटॉन का एडिशन होता है दैट इज द फर्स्ट पोजीशन। तो इसलिए आंसर इसका फर्स्ट होगा। देखो मैं न्यूक्लियोटाइड के केस में दो कंपोनेंट को डिस्क्राइब किया हूं, वन इज द शुगर एंड सेकेंड इज द नाइट्रोजनस बेस। जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में कॉम्बाइन करते हैं तो जो फॉर्म डेवलप करता है उसे आप डिस्क्राइब करते हो न्यूक्लियोसाइड। तो मैं अगर शुगर रेजिड्यू और नाइट्रोजनस बेस इन दोनों को आपस में कोवलेंटली अगर ज्वाइन करता हूं तो इन दोनों के बीच कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद जो फॉर्म डेवलप होता है उसे आप डिस्क्राइब करते हो न्यूक्लियोसाइड के तौर पर। और जब आप न्यूक्लियोसाइड के केस में शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो प्रेजेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करते हो तो उस बॉन्ड को डिस्क्राइब करते हो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के तौर पर। नाउ सी द मीनिंग ऑफ द बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो यहां मैं एक पायरिमिडीन को शो कर रहा हूं, आप प्यूरिन को भी कंसीडर कर सकते हो, मैं यहां सिंप्लिसिटी के लिए पायरिमिडीन को शो किया। एंड दिस इज द फर्स्ट पोजीशन जहां नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उनके साथ हाइड्रोजन है। ये मैं यहाँ राइबोस शुगर शो की हूँ, आप डीऑक्सी राइबोस शुगर को भी कंसीडर कर सकते हो। अब जो 1' कार्बन है, इस 1' कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है और मैंने एनोमेरिक कंडीशंस को डिस्क्राइब करते समय मेंशन किया था कि आप OH ग्रुप के पोजीशन को आप ऊपर की ओर शो करते हो, अप शो करते हो। इट मीन्स कि यहाँ एनोमेरिक कंडीशन क्या आप शो कर रहे हो? तो बीटा। दिस OH जो कि 1' कार्बन के साथ एसोसिएटेड है एंड दिस हाइड्रोजन जो कि फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ एसोसिएटेड, ये दोनों वाटर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब इन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पार्टिसिपेशन से वाटर का फॉर्मेशन होगा तो फिर उस कंडीशन में ये जो नाइट्रोजन मैं यहाँ शो कर रहा हूँ फर्स्ट नाइट्रोजन के तौर पर, और यहाँ जो मैं कार्बन कंसीडर कर रहा हूँ जिसको मैं 1' कार्बन के तौर पर यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। उस कोवलेंट बॉन्ड को आप डिस्क्राइब करते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ मैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को मेंशन किया हूँ फर्स्ट नाइट्रोजन एंड 1' कार्बन के बीच। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान वाटर यहाँ बाहर निकल रहा है और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नेचर क्या है? तो यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नेचर को आप मेंशन करते हो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि यहाँ 1' कार्बन
और नाइट्रोजन के बीच यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए आप इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अगर यहाँ नाइट्रोजन की जगह अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता तो फिर आप उस कंडीशन में डिस्क्राइब करते हो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मैं यहाँ ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड, जब आप यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नेचर को डिस्क्राइब करते हो तो आप मेंशन करते हो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि आप इस 1' कार्बन को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, एंड 1' कार्बन का एनोमेरिक कंडीशन क्या है, तो बीटा है। तो अगर एनोमेरिक कंडीशन बीटा है तो आपको यहां मेंशन करना होगा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए, अगर मैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से नाइट्रोजनस बेस और शुगर रेजिड्यूज को आपस में अगर लिंक कर रहा हूं, तो इस लिंकेज के बाद जो कंपाउंड का फॉर्म डेवलप हुआ उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब अगर मैं प्यूरिन, दिस इज द प्यूरिन एंड दिस इज द पायरिमिडिन, अगर मैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन पायरिमिडिन और शुगर रेजिड्यूज के साथ अगर शो कर रहा हूं, तो जो शुगर रेजिड्यूज है उसका फर्स्ट 1' कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, और नाइट्रोजनस बेस के तौर पर अगर मैं पायरिमिडीन कंसीडर कर रहा हूं तो पायरिमिडीन का कौन सा पोजीशन पार्टिसिपेट करता है, तो फर्स्ट पोजीशन पार्टिसिपेट करता है, 1' कार्बन एंड फर्स्ट नाइट्रोजन, ये पार्टिसिपेट करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। बट जब आप पायरिमिडीन के प्लेस में प्यूरिन को कंसीडर करते हो, तो प्यूरिन के केस में आप यहाँ अगेन 1' कार्बन को इन्वॉल्व करते हो, जिसको आप एनोमेरिक कार्बन के तौर पर भी यहाँ कंसीडर कर रहे हो, और नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन का जो पोजीशन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज द 9th पोजीशन। तो आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दोनों कंडीशन में शो कर रहे हो, दोनों कंडीशन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नेचर है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर आप पायरिमिडीन के केस में शो कर रहे हो तो ये 1' कार्बन एंड फर्स्ट नाइट्रोजन के बीच आप शो करते हो। अगर आप प्यूरिन के केस में शो कर रहे हो तो 1' कार्बन और 9th पोजीशन पर आप शो कर रहे हो, तो दैट इज द डिफरेंस। देखो, ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि pH 7 पर नाइट्रोजनस बेस के तौर पे प्यूरिन एंड पायरिमिडीन भी अनचार्ज्ड होता है, और शुगर रेजिड्यूज के तौर पर राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर भी अनचार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि pH 7 पर आप न्यूक्लियोसाइड पर कोई चार्ज वाले कंडीशन को शो नहीं करते, क्योंकि ना तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ चार्ज कंडीशन शो करेगा, ना शुगर रेजिड्यूज चार्ज कंडीशन को शो करेगा। इसके अलावा अगर आप न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल के नेचर को अगर आप नाइट्रोजनस बेस और शुगर से कंपेयर करो, मैंने मेंशन किया था कि शुगर मॉलिक्यूल का नेचर हाइड्रोफिलिक होता है, यानी पोलर होता है, और नाइट्रोजनस बेस जो इनके साथ लिंक्ड है, इनका नेचर जो है नॉन पोलर होता है। तो आप जिस मॉलिक्यूल को यहाँ न्यूक्लियोसाइड के तौर पे कंसीडर कर रहे हो उसमें शुगर भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है। इट मीन्स कि यहाँ पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट है और नॉन पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप डिस्क्राइब करते हो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। इट मीन्स इट इज नॉट कंप्लीटली पोलर और इट इज नॉट कंप्लीटली नॉन पोलर, बल्कि इनका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर जो है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल के तौर पर आप कंसीडर कर रहे हो। देखो, जब आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को नाइट्रोजनस बेस और शुगर रेजिड्यूज के बीच आप शो करते हो, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रिप्रेजेंट द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आप रोटेशन को शो कर सकते हो। अगर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर रोटेशन आप शो कर रहे हो तो फिर यहाँ टू डिफरेंट कन्फर्मेशन जो है पॉसिबल है। एक कन्फर्मेशन को आप डिस्क्राइब करते हो एंटी कन्फर्मेशन और दूसरी कन्फर्मेशन को आप डिस्क्राइब करते हो सीन कन्फर्मेशन। और ये इसलिए क्योंकि आप यहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहे हो, जिनके कारण यहाँ रोटेशन जो है पॉसिबल है, और रोटेशन पॉसिबल होने के कारण ही या एंटी और सीन कन्फर्मेशन वाले कंडीशन जो है डेवलप हो सकते हैं। नॉर्मली एंटी और सीन कन्फर्मेशन को आप डिस्क्राइब करते हो विथ रिस्पेक्ट टू प्यूरिन। तो जैसे यहाँ मैं 9 मेंबर रिंग के तौर पे प्यूरिन को अगर शो कर रहा हूँ, तो प्यूरिन के केस में जनरली हम लोग एंटी और सीन कन्फर्मेशन को मेंशन करते हैं। अब अगर इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रोटेशन के कारण ये जो 6 मेंबर रिंग का जो पोजीशन है, अगर इस शुगर रेजिड्यूज के जस्ट एवब अगर आप शो कर रहे हो, तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो सीन कन्फिगरेशन, सीन कन्फर्मेशन। बट इसी
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रोटेशन के कारण अगर ये जो 6 मेंबर रिंग आप प्यूरिन के केस में शो कर रहे हो, अगर ये शुगर रेजिड्यू से अगर दूर है, बाहर की ओर है, तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो एंटी कन्फर्मेशन के तौर पर। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के 2 डिफरेंट कन्फर्मेशंस आप प्यूरिन के रिस्पेक्ट में शो करते हो, वन इज द एंटी और सिन। बट आप ये कंडीशन जो है पायरिमिडीन के केस में भी अप्लाई कर सकते हो। अब पायरिमिडीन के केस में तो 9 मेंबर रिंग वाले कंडीशन नहीं है, बट उनके बावजूद भी आप यहाँ कंडीशन को जो है मेंशन कर सकते हो लाइक दिस। अगर ये मैं 2 प्राइम पोजीशन पर अगर ऑक्सीजन को शो कर रहा हूँ, अगर इसके रोटेशन के कारण ये शुगर रेजिड्यू से बाहर की ओर है, तो फिर आप इसे डिस्क्राइब करते हो एंटी। लेकिन अगर मैं इनके रोटेशन के कारण अगर इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस को अगर यहाँ शो कर दूं, तो फिर आप इस कंडीशन में इसको डिस्क्राइब करोगे सिन। तो एंटी और सिन 2 डिफरेंट कन्फर्मेशंस को आप मेंशन कर सकते हो इन केस ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे हम लोग फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करते हैं लिटरेचर में, इसका मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे नाइट्रोजनस बेस के तौर पर आप एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल को कंसीडर करते हो। लेकिन अगर मान लो मेंशन है एडिनोसिन, तो इट मीन्स कि आप यहाँ राइबोस शुगर और एडेनिन इन दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हो, तो आप उस कंडीशन में डिस्क्राइब करोगे एडिनोसिन। अगर राइबोस शुगर और ग्वानिन के बीच है तो ग्वाइनोसिन, राइबोस शुगर और साइटोसिन के बीच है तो साइटिडीन, और राइबोस शुगर और यूरेसिल के बीच है तो यूरिडीन। तो देखो एडेनिन और एडिनोसिन इन दोनों में फर्क है। एडेनिन इज ए नाइट्रोजनस बेस, एडिनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में भी अगर राइबोस शुगर है तो फिर एडिनोसिन, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन टर्म आप यूज करोगे, क्योंकि आप डीऑक्सीराइबोस शुगर और एडेनिन को कंसीडर कर रहे हो। तो ये चीजें आपके माइंड में रहे। और यूरिडीन के केस में चूंकि यूरेसिल एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पर आप मोस्टली आरएनए में शो करते हो, और थाइमिन एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पर आप मोस्टली डीएनए के केस में शो करते हो, इसलिए यहाँ मैं यूरिडीन को जो है राइबोस शुगर के साथ अटैच किया हूँ और थाइमिन को मैं डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ अटैच किया हूँ। तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोसाइड। देखो जब आप वोबेल हाइपोथेसिस जैसे टॉपिक को आप फॉलो करते हो, तो वहाँ आप हाइपोजेंथिन और आइनोसिन जैसे टर्म्स को आप यूज करते हो। इसको हम लोग चेक करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखो अगर मैं एडेनिन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो इट इज नाइट्रोजनस बेस, और मैंने मेंशन किया था अभी कुछ देर पहले कि एडेनिन के केस में अमीनो ग्रुप होता है, और जब आप यहाँ डीएमिनेशन शो करते हो तो डीएमिनेशन के बाद हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन होता है। ये भी नाइट्रोजनस बेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एडेनिन के डीएमिनेशन से हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ एडिनोसिन का। जब आप एडेनिन को राइबोस शुगर के साथ अटैच करते हो तो आप उसे डिस्क्राइब करते हो एडिनोसिन, और एडिनोसिन के केस में जब आप डीएमिनेशन शो करते हो तो डीएमिनेशन के बाद क्या होगा। देखो राइबोस शुगर में तो कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होगा, बट एडेनिन हाइपोजेंथिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एडेनिन का डीएमिनेशन हुआ तो एडेनिन डीएमिनेशन के कारण जो है हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो। लेकिन नाइट्रोजनस बेस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो एडेनिन डीएमिनेशन के बाद हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हुआ। बट अगर मैं न्यूक्लियोसाइड के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ एडिनोसिन को अगर शो कर रहा हूं तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोसाइड। तो अगर मैं एडिनोसिन का डीएमिनेशन शो करता हूं तो फिर जो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्म डेवलप होता है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं आइनोसिन। तो हाइपोजेंथिन इट इज ए नाइट्रोजनस बेस, आइनोसिन इट इज ए न्यूक्लियोसाइड। हाइपोजेंथिन को जब आप राइबोस शुगर के साथ आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड करते हो तो उस कंडीशन में आप उसे डिस्क्राइब करते हो आइनोसिन। तो अगर मैं एडेनिन का डीएमिनेशन शो करूं तो मैं मेंशन करूंगा हाइपोजेंथिन। अगर मैं एडिनोसिन का डीएमिनेशन शो करूं तो मैं मेंशन करूंगा आइनोसिन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोजेंथिन एंड आइनोसिन। जब आप ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो तो वहां आप एक टर्म कॉमनली इनकाउंटर करते हो, स्यूडो यूरिडीन।
और जिसे इस पर्टिकुलर सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं यूरेसिल को यहाँ शो कर रहा हूँ, दिस इज द यूरेसिल एंड दिस इज द राइबोस शुगर, क्योंकि आप यहाँ OH ग्रुप को शो कर रहे हो। तो आप इसे न्यूक्लियोसाइड के तौर पर डिस्क्राइब करोगे और इस न्यूक्लियोसाइड को आप डिस्क्राइब करोगे यूरिडीन। अगर नाइट्रोजनस बेस को मेंशन करता तो यूरेसिल मेंशन करता, क्योंकि मैं नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ राइबोस शुगर को यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं न्यूक्लियोसाइड को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा यूरिडीन। अब अगर आप यूरिडीन के केस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर आप शो कर रहे हो तो 1 प्राइम कार्बन एंड फर्स्ट पोजीशन पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनके बीच आप शो कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कंडीशन को चेंज करूं, ये 1 पोजीशन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में नहीं पार्टिसिपेट करे, बल्कि 5th पोजीशन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर यहाँ परफॉर्म हो, तो इस कंडीशन में आप मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करोगे स्यूडो यूरिडीन। दैट इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द 1 प्राइम कार्बन। आप देखो डिफरेंसेस, यहाँ भी यूरेसिल है, यहाँ भी यूरेसिल है, बट यूरेसिल और राइबोस शुगर के बीच जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का पोजीशन आप यहाँ शो कर रहे हो, और यूरेसिल और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, यूरेसिल और राइबोस शुगर के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आप यहाँ शो कर रहे हो, इन दोनों में जो है डिफरेंसेस। अगर फर्स्ट पोजीशन यूरेसिल का पार्टिसिपेट करे तो यूरिडीन, अगर 5th पोजीशन पार्टिसिपेट करे तो स्यूडो यूरिडीन। तो दैट इज द डिफरेंस।